Hello, everybody. A very warm welcome to all of you. Hi, guys. This is me, Vani Mehra, and I welcome you all to Vani Academy. Today, we are here to continue the class that is of the India and Indian Ocean region. And we will be discussing about the countries, the countries in the Indian Ocean region and the visit of the Prime Minister, which took place way back in 2015. But it will also tell us how we have built our relations along the lines. So please be very focused in this session. We will be talking about firstly, India and Mauritius. Let me tell you, when I talk about India and Mauritius, we will be discussing all the angles of how we have tried to build our ties. What are the things that we are trying to improve? So there was a National Day of Mauritius, which is celebrated every year on 12th of March. And this was selected as a tribute to Gandhiji as he had launched the famous Dandi March. So this day is also, you can say, a contribution, or you can say a tribute to Mahatma Gandhi. The reason was what? What was the reason? Dandi March. Now, 68% of inhabitants over here, the people, those who are staying in Mauritius, 68% of inhabitants are Indians. वो इंडियंस है 68% inhabitants, ठीक है. और साथ ही साथ में Mauritius has vast 2.3 million square kilometer of exclusive economic zone. So Mauritius, by virtue of its strategy, or you can say strategic location, is recognized as a hub of maritime activity of Indian Ocean region. It is something which is very important. And we also look forward to building better relations in this piece of land because, yes, of course, it is one of the most important areas that we look forward to when we talk about the Indian Ocean region. In Indian Ocean region, all the countries which are existing, they are extremely useful. They're extremely important to us. Like, let's talk about the island nation like Indonesia. For example, we talked about the immediate neighbors, which are Maldives and Sri Lanka. Similarly, countries like Mauritius, country like Seychelles, they are also extremely, extremely important. So this is something that we have to understand. Now, two countries, both India and Mauritius, have actually, signed 5 agreements. Signed 5 agreements. 5 agreements. One, the first one being on opening up ocean economy, or you can say blue economy. That is, everybody in the Indian Ocean region should be able to trade. अगर एक country दूसरी country से कुछ खरीदेगी, एक कंट्री दूसरी कंट्री को कुछ बेचेगी, तो उसी से वो ट्रेड करेंगे, पैसा कमाएंगे, रेवेन्यू कमाएंगे, और उसके बाद वो अपनी कंट्री की जीडीपी को भी ग्रो कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम उनके प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे. कुछ चीजें जो आप अपनी कंट्री में ग्रो कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ चीजें आप सामने की कंट्री से ले सकते हो. तो अगर आप अपना वाटरवेज को स्ट्रेंथन करते हो और ऐसे टाइज अगर आपके पास है नेबरिंग कंट्री जिनके साथ आप ऐसा ट्रेड कर सकते हो, सो व्हाई नॉट. तो इंडक्शन ऑफ आप कह सकते हो ये जो ब्लू इकोनॉमी है या ओशन इकोनॉमी है, ये इंपॉर्टेंट है जो इंडिया मॉरिशस में हुआ. एंड अनदर की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज कि इंडिया टेकिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज की हेल्प की है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, एंड इंडिया की भी, जापान ने जैसे इंडिया की हेल्प की है. फॉर एग्जांपल द बुलेट ट्रेन एंड different kind of infrastructure projects have been taken up by Japan in India. Similarly, इंडिया ने मॉरिशस के टुवर्ड्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो सी और एयर लिंक जो है वो बनाएगा इन द आइलैंड्स. व्हिच आइलैंड्स? आई एम राइटिंग डाउन द अगालेगा आइलैंड्स. तो इंडिया क्या करेगा यहाँ पे? इट विल बी बिल्डिंग द सी एंड एयर लिंक ओवर हियर. ऑफ कोर्स इंडिया कैन डू दैट, एंड दैट इज व्हाई within this capacity only India has been asked to do this, right? So this is something that we have, when we talk about India-Mauritius ties in the beginning. I have another 1 or 2 aspects to tell you. So please note this down and I shall rub it after this.
ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो इंडक्शन है, इंडक्शन ऑफ व्हाट? इंडियन बिल्ट नेवल पेट्रोल वेसल 1300 टन वेसल, नेम है इसका बाराकुडा, फॉर द मॉरिशियन नेशनल कोस्ट गार्ड, मार्क द फर्स्ट ऑफ सच सेल्स टू दिस स्ट्रेटेजिक आइलैंड नेशन। जो हमने इंडिया में बना के नेवल जो पेट्रोल वेसल है 1300 टन का जो उन्हें दिया, जिसका नाम है बाराकुडा, ये हमारा पहला स्टेप है टुवर्ड्स हेल्पिंग देम and selling selling of strategic you can say something to them, and at the same time building our ties in a better way, including fast attack craft under construction in Indian shipyard। तो अभी एक चीज हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कि हम उन्हें फास्ट अटैक you can say we can give them this crafts, so this is something which is under construction, definitely we will be providing to them। in addition India has extended, अब मैंने आपको बताया था कि लोन फैसिलिटी, कोई भी कंट्री पैसा, तो देखो हम एज ह्यूमन बींग्स अगर हम बात करें तो हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं। अब अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप किसी से पैसा मांग सकते हो, तो कोई भी डेवलपिंग कंट्री है अगर उसको जरूरत पड़े पैसे की तो वो किसी और कंट्री से मांग सकती है, और ऑब्वियसली आप उसी से मांगोगे जिस पे आपको ट्रस्ट है, या जो नेशन आपको हेल्प कर सकता है, या जो नेशन आपकी डेवलपमेंट में आपको हेल्प कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया हैज एक्सटेंडेड 500 मिलियन US$ of line of credit, LOC is not the another LOC, line of credit है यहाँ पे, जो इंडिया ने ऑफर किया डेवलपमेंट और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए मॉरिशस के अंदर। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड। तो इंडिया का ये जो एक्सटेंशन है, ये जो हेल्प है, वो हेल्प करेगा उनको अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने में, डेवलपमेंट करने में, तो ये अच्छी चीज है, ठीक है। And this is it about India and Mauritius. I request you to please go through current affairs and keep updating your notes। जो भी हम बना रहे हैं, जो भी हम चीज जो भी डिस्कस करें, उसके ऊपर का अपडेशन आपको करना ही पड़ता रहना पड़ेगा, because this is how UPSC preparation is, everyone। You have to focus all the time on updating your notes from the newspaper, from whatever source that you are reading, ठीक है। Now I'm moving on to India रिलेशन। जैसे आई जस्ट टॉक्ड अबाउट कि इंडियन ओशन रीजन में हम ब्लू इकोनॉमी को या ओशन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो सिमिलरली हमने सोचा कि व्हाई डोंट वी बिल्ड आवर रिलेशन बेटर विद सीचेल्स, ठीक है। तो हमने इनके साथ भी अपना रिलेशन बेटर किया। प्राइम मिनिस्टर ही वेंट और ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड सिचेल्स इन 34 years। 34 साल में पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सिचेल्स को विजिट किया। And Prime Minister Modi had announced that India will give a second Dornier aircraft to island nation for coastal surveillance। तो इंडिया ने उनको क्या प्रॉमिस किया कि कोस्टल सर्वेलेंस के लिए we will help them and we will give them a Dornier aircraft। At the same time, the two nations signed 4 agreements। 4 agreements देखो इन्होंने साइन किए, 4 agreements for cooperation। किस चीज के अंदर कोऑपरेशन? पहला उन्होंने कहा कि हम हाइड्रोग्राफी में कोऑपरेट करेंगे, फील्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी। फिर बात किया उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में हम कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बात किया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोऑपरेट करेंगे, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे। फिर बात किया कि हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेट, और हाइड्रोग्राफिक सर्वे में वी विल बी कोऑपरेटिंग। So these are certain things that were being demanded, and hence these are the 4 various areas that have been focused on। फोर एग्रीमेंट्स। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इन द एजम्पशन आइलैंड। तो एजम्पशन आइलैंड के अंदर उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे इन सीचेल्स। तो इसका मतलब ये है कि हम उनको किसी भी वे में हेल्प करना चाहते हैं। जब आप किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड करते हो ना, तो ऑब्वियसली उस कंट्री के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ जाते हैं, उस कंट्री का ट्रस्ट फैक्टर आप पे बढ़ जाता है। तो इट रियली हेल्प्स दैट कंट्री टू बिलीव इन यू इन द नियर फ्यूचर। तो इंडिया और सिचेल्स का भी ऐसा ही है कि इंडिया ने कहा कि ठीक है हम आपको इन सब एरियाज में बेनिफिट करेंगे, हाइड्रोग्राफी में, एनर्जी में। और एनर्जी तो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कोऑपरेशन पे कितनी सारी कंट्रीज आर बिल्डिंग द रिलेशनशिप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ द 8
coastal surveillance radar system, SRS, which you call, which was being set up by India. India is helping Indian Ocean littorals as part of capacity and capability enhancement. मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, और अगर इंडिया किसी कंट्री को कैपेसिटी बिल्ड करने में हेल्प कर रही है और कैपेबिलिटी बिल्ड करने में हेल्प कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया इज इन ट्रू सेंस ट्राइंग टू हेल्प दिस कंट्री टू कम अप एंड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर. You can talk in terms of trade, you can talk in terms of competition, development, whatever. साथ ही साथ में मालदीव है जैसे, वहां पे भी there is a system which is pending, and 6 automatic identification system stations have been set up in Sri Lanka. तो इंडिया ने सिर्फ ये नहीं सिचलिस के लिए करने का सोचा है, इंडिया ने कहा मालदीव को भी करेंगे, श्रीलंका भी करेंगे. तो इट इज वेरी कंसिडरेट टू इट्स नेबरहुड. ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया इज बीइंग वेरी मच कंसिडरेट टू इट्स नेबरहुड, एंड दैट इज व्हाई देयर इज दिस स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी ऑफ इंडियन ओशन जो एक्चुअली हमें फोर्स कर देती है ये समझने में कि जो इंडिया है it's trying to help and build its relation better. So this is the key developments that I had to talk. I'm just discussing India and Mauritius. Now Project Mausam I will be discussing now in the next slot, okay?